of College of Physicians and Surgeons in Cardiology. He is presently the General Secretary of Pakistan Cardiac Society. He has specialized in the field of interventional cardiology, and he also specialized in the field of intervention. He actively participates as speaker and moderator in national scientific meetings and has facilitated multiple CME workshops. He has to his credit more than 20 research articles in national and international journals of repute. डॉक्टर साहब जो हैं उनकी एक ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, जिसके अंदर से बहुत सारे फ़ैन हमें आज यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। और माशाल्लाह से एक उनका जो मिशन है ना वो ये है कि लोगों में आगे ही फैलाई जाए। सो ही डजंट कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। सो मे आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर फवाद फारूक प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। Thank you very much, and thanks to Dr. Shaila Naseem and whole of the team to really inviting me to say a few words about this very important subject. In a way, ECG वो चीज़ है जिससे आपकी जान कभी नहीं छूटेगी, चाहे आप कार्डियोलॉजिस्ट हों या नॉन कार्डियोलॉजिस्ट। तो what we'll do, we'll try to go through ECG very quickly, all those things which are just recall, because I'll give you in a moment how to then recapture those things. We'll just quickly interact on those points which are really need some assessment in a way that you have to compile data together and finally conclude what's the issue. Otherwise ECG में जो चीज़ें हैं वो अगर हैं तो नज़र आएंगी, वो शर्त ये है कि आप देखें उनको। ये जिसका अभी जिक्र कर रही थी डॉक्टर शैला, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल, and you can found this ECG workshop. Firstly, there is a book right now which is published by Paramount. Summarized way में हर चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें मौजूद है। अभी डॉक्टर साहब एक ऐप की बात कर रही थी जो 5-6 हज़ार का है, ये 600-700 की बुक है। खर्चा कर लेंगे तो इसके बाद फिर इसको एक हफ्ते में आप बड़ी आसानी से कंसोलिडेट कर सकते हैं जो कुछ भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। और ये आज बुक जो पहला सवाल मैंने पूछा और जिसने सही जवाब दिया तो ये उसकी होगी, ठीक। ये आप बस ऑनलाइन भी कर सकते हैं पैरामाउंट बुक से। ये 4 पार्ट्स में यही चीज़ें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 1.5 से 2 घंटे के वर्कशॉप है पूरा 4 पार्ट्स में, तो वो भी मौजूद है। तो बुक, ये वीडियो और आज का ये लेक्चर, इसको मिला के अगर आप चल पड़े तो मेरा ख्याल है कि ECG देखना फिर आपके लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। पहली ECG है, पहले तो ऐसे कुछ लोग जो कुछ ना कुछ ECG जानते हो, कोई हाथ खड़ा करेगा? मेरा ख्याल है कोई नहीं खड़ा करेगा जी। चलें कुछ ना कुछ ट्राई करें कि आपको क्या लग रहा है इस ECG में। 54-year-old man with sudden onset of giddiness, एक नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम है, चलते फिरते थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। क्या है आपके ख्याल में इस ECG में? कोई एक आध बंदा हमें चाहिए होगा माइक लेके जरा, जो आंसर कर रहा हो तो उस तक जल्दी से चला जाए जी। एट्रियल फिब्रिलेशन, व्हाई? Rhythm is irregular is not enough because you have irregular rhythm in multiple rhythms. So what other specific thing is there apart from irregular? Absence of P wave. There is no P wave, and rhythm is not just irregular, irregularly irregular. Okay, rest of the things are normal. That's why we are saying 70 years woman with sudden onset of left-sided chest pain. Inferior wall MI. Why inferior wall MI? Because there are ST elevations in 3 and EAVF. Okay, so there are ST elevations.
although you have to give all the things in relation to ECG, rhythm, QRS is wide as well apart from ST elevation. वो अभी हम आते हैं इस पे. ये सिर्फ थोड़ा सा आपको हिलाने के लिए है कि ज़रा दिमाग और दिल सब तैयार हो जाए पढ़ने के लिए. जी, इसमें 51 years old businessman with acute chest pain and shortness of breath. अब इसमें दो चीजें हैं. Apart from ischemia, there is something wrong with rhythm, and most of the time in acute abnormality you may find multiple things. So that's why it's very important when you know ECG, you should screen ECG from A to Z. And today we'll discuss how to go in ECG reading from A to Z, meaning by seeing everything, not just one obvious abnormality. जी 2-3 AVF में ST elevation है थोड़ी बहुत, और 7 PVCs भी आ रही हैं, which is alternate, and alternate PVC is called bigeminy, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल. तो एक इसका अपना नेटिव रिदम है और एक वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट है, लेकिन अपने नेटिव रिदम में आपको ST elevation मिल रही है क्लियर कट, और फिर साथ एक्यूट चेस्ट पेन भी है, तो फिर ये MI बन जाएगा. और इसमें चूंकि ये वेंट्रिकुलर बीट है तो इसमें कमेंट आप ST सेगमेंट पे नहीं करते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट लेते हैं. इसके बाद हम पहले बेसिक को क्विकली गो थ्रू करेंगे ताकि आपके अंदर एक ओवरव्यू बन जाए ECG का. सो वी ऑल नो दैट ECG इज इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी ऑन पेपर. उस दिल में जो भी बिजली का निजाम चल रहा है उसको अपने पेपर पे रिकॉर्ड कर दिया. कहां से आप रिकॉर्ड करते हैं? 12 डिफरेंट लीड्स के जरिए से. इसलिए वो 12 ECGs में 12 डिफरेंट तरीके से नजर आती है. ये उसका तरीकेकार है कि डिफरेंट जगह पे अपने इलेक्ट्रोड्स लगाए. अब इंपॉर्टेंट चीज, हम ECG करते क्यों हैं? आम ख्याल यही होता है कि ECG सिर्फ इसलिए की जाती है कि जब किसी को एक्यूट चेस्ट पेन होगा, हालांकि उससे ज़्यादा ECG की इम्पोर्टेंस रेट और रिदम में है. आप कोई ACLS कर ही नहीं सकते अगर आपको ECG नहीं आती है. आप वो बेसिक लाइफ सपोर्ट करते हैं ना, दैट इज़ जस्ट अ ब्रिज. उसके बाद करना क्या है? मॉनिटर देखना है कि मॉनिटर पे रिदम, और अगर आपको रिदम जानना नहीं आता देन यू कांट really do any better for your patient. टैकीरिथमिया है, ब्रेडिरिथमिया है, और फिर उसमें किस किस्म का टैकीरिथमिया है ताकि उसकी बुनियाद पे फैसला हो. तो अदर वे राउंड रिदम असेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जस्ट इस्कीमिया. वो तो फिक्स चेंजेस हैं जो आपको आनी चाहिए. सो रेट एंड रिदम, और ये तो मैं एक्यूट की बात कर रहा हूं. क्रॉनिकली आपके पास पेशेंट आता है तो अगर आप उसके एक्सट्रीम्स ऑफ रेट हैं, अपने तौर पे एज्यूम नहीं करना होता कि किसी का रेट 50 है तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है. 50 है तो ECG चाहिए. इट मे बी AV ब्लॉक, आपको पता ही नहीं है अंदर चल रहा है, वो आगे जाके कहीं गिर जाएगा. सिमिलरली रेट उसका 110, 120 और परसिस्ट कर रहा है. देखिए, ट्रांजिएंट एंजाइटी या सिचुएशनल रिलेटेड टैकीकार्डिया वो वक्त के साथ ठीक हो जाता है. परसिस्ट कर रहा है तो ECG चाहिए. इट नॉट जस्ट साइनस टैकीकार्डिया, मे बी सम